ڈل جھیل کو دریائے جہلم سے جوڑنے والے نالے کی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ اس نالے میں کچرا پھینکنے سے آس پاس کا ماحول آلودہ اور بدبودار ہو گیا ہے۔ علاقے کے لوگوں کو پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں، لیکن حکام ہے کہ حسب معمول اس نالے کا تحفظ اور اسے خوبصورت بنانے کے صرف وعدے اور باتیں کر رہے ہیں۔ پیش ہے ہمارے چیف کورسپونڈنٹ پرویز بٹ کی خاص رپورٹ۔ یہ ہے شورۂ آفاق ڈل جھیل کا دلکش نظارہ۔ جہاں پر ملکی اور غیر ملکی سیاح اس کی سیر کے لیے وادی کشمیر آتے ہیں۔ ڈل کے اس حصے پر خاص توجہ بھی دی جاتی ہے، وہیں دوسری جانب اس خوبصورت جھیل کے آبی گزرگاہوں کی کیا حالت ہے، ذرا اس کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں۔ یہ تصویریں ہیں ڈل کے فلڈ چینل سونٹ کال کی، جس میں جگہ جگہ پلاسٹک کی بوتلیں اور کچرا نظر آ رہا ہے۔ ڈل میں پانی کی سطح بڑھ جانے کے بعد اس نالے کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ایک دور میں اس نالے کا پانی اتنا صاف و شفاف ہوتا تھا کہ لوگ اسے پینے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن یہی نالا اب یہاں آس پاس رہنے والوں کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ اس آلودہ نالے کی بدبو سے خاص کر موسم گرما میں لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ اس کے کنارے کچرے کے انبار میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ گاؤں کدل، مندر باغ اور بسنت باغ کے لوگوں کو اس سے خاصی دقتوں کا سامنا ہے۔ یہ چونٹ کل ہے، اس کا پانی ہم پیتے تھے۔ یہ یہاں انہوں نے ڈرین رکھی ہے، ڈرین سے نکال رہے ہیں پانی، سارا پانی آپ دیکھ لیجئے، یہ سارا پانی یہاں سے نکل رہا ہے، جتنی بھی گند ہے یہاں سے نکل رہی ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ کم سے کم یہاں اس طرف دھیان دے دیجیے۔ یہاں سے لے کر ڈل گیٹ تک ایٹ لیسٹ 17 to 20 ڈرینز اس میں فلش آؤٹ ہوتے ہیں۔ سارے آس پاس جو بستی ہے اس کا ملبہ اس میں جاتا ہے، لال چوک ایریا کا ملبہ اس میں پانی میں جاتا ہے، اور یہ آگے سے اتھارٹیز نے اس کو بلاک کر کے رکھا ہے۔ ہمارا یہ کوشچن ہے کہ یہ بلاک کیوں کیا آپ نے؟ اگر کیا ہے تو اس کا کیا سولوشن ہے آپ کے پاس؟ اس آبی گزرگاہ پر کچرا جمع ہونے کی اہم وجہ اس کے فلڈ گیٹ ہیں، جو کہ اکثر بند رہتے ہیں۔ ماحول آلودہ رہنے سے یہ جگہ آوارہ کتوں کی آماجگاہ بھی بن گئی ہے، اور یہاں سے گزرنے والوں کو دشواریوں کا بھی سامنا رہتا ہے۔ نیوز 18 اردو نے لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام سے اس معاملے کو رجوع کیا تو انہوں نے اس نالے کے تحفظ اور اس کی تجدید کے لیے بڑے منصوبوں کا ذکر کیا۔ میں دونوں سائڈ سے کافی انکروچمنٹ تھی، تو اتھارٹی نے بڑا ایک اہم اچیومنٹ کی ہے کہ سارے اسٹرکچر جو وہاں پر تھے تو وہ وہاں پر ڈسمنٹل ہو چکے ہیں۔ اب چونکہ چونٹکل کا کوئی پہلے یہ کنزرویشن پلان میں نہیں تھا، تو اب اس سال ہم نے اس چونٹکل کو بیوٹیفیکیشن کے لیے اس کا جو شور لائن ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جسٹ فار بیوٹیفیکیشن اینڈ اسٹیبلائزیشن آف دا سلوپس۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیویڈنگ کا بھی اس سال بڑا ہی امپیکٹ رہے گا، کیونکہ ڈیویڈنگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ چونٹکل میں بھی کافی ویڈ گروتھ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم نے لیبر پرپوز کیے ہیں اس سال اس میں چونٹکل میں لگائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں کچھ سالڈ ویسٹ کا بھی پروگرام ہے ہمارا، کیونکہ سالڈ ویسٹ بھی اس میں جو ہے وہ لوگ ڈالتے ہیں، اس میں ان ٹرمز آف پالیتھین بوتلز ڈالتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اس کے لیے وہ ہٹا رہے ہیں۔ جو بی ایس این کیبلز ہیں اور پی ایچ ای لائنز جو کراس کرتے ہیں چونٹکل کو، یہ بہت ہی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں فار فری فلو آف دا واٹر۔ آبی ذخائر وادی کشمیر کی شان و شوکت کے مظہر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ اور پھر عام لوگوں کی لاپرواہی سے ان کا وجود ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے تحفظ اور عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے ایک جامع منصوبہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ قصبہ اونتی پورہ میں کالج نہ ہونے کی وجہ سے طلباء کو دوسرے علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ سال 2019 میں کانجی ناگ کے مقام پر سرکار نے ایک نئے کالج کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔
कॉलेज का तामीराती काम भी जारी है। कॉलेज इंतजामिया ने तलबा की सहूलियत के लिए क्लासरूम तैयार किए हैं। आज स्ट्रीम में दाखिले भी शुरू हो गए हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद ने बताया कि तलबा के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। उनको वहाँ मिलती है। बिल्कुल मैं उनको एश्योर करता हूँ कि हमारे इस कॉलेज में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ के बच्चे कुछ त्राल जाते थे, पुलवामा जाते थे, अनंतनाग जाते थे या पामपुर जाते थे, अब उनका अपना कॉलेज है इधर, वो आए, अभी एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं तो वो यहाँ एडमिशन कर सकते हैं। अभी हमारा 8 स्ट्रीम चल रहा है। महाशिवरात्रि की तैयारियों का जायजा लेने और शिवरात्रि मिलन के तहत वेसुक काजीगुंड माइग्रेंट कैंप में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर एजाज असद, डीआईजी जनूबी कश्मीर अतुल गोयल, सिविल इंतजामिया और पुलिस अफसरान समेत कश्मीरी पंडितों और मकामी मुसलमानों ने प्रोग्राम में शिरकत की। महकमे हॉर्टिकल्चर और दीगर मुतल्लिका महकमों ने स्टॉल कायम किए थे। रंगारंग तहजीब तमद्दुन मौसीकी के प्रोग्राम पेश किए गए। कश्मीरी पंडित लीडर संजय सराफ ने कहा कि ये प्रोग्राम भाईचारे की अक्कासी करता है। ये आइंदा भी कायम रहेगा। ये हम मतलब हर टाइम जैसे ईद होती है तो इफ्तिकार पार्टी रखते हैं हमारे यहाँ मुस्लिम भाई, हम सब यहाँ से कॉलोनी के लोग जाते हैं। आज हमारा त्यौहार था, आज वो बेचारे बड़ा बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कैसे सारे आए, काम चाम छोड़ के हम हमारे त्यौहार में हमारा साथ दिया। तो ये आगे भी चलता रहेगा। अच्छी बात है, मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ। पर्टिकुलरली अपने वेसु कैंप के इन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये मैसेज देना स्टार्ट कर दिया कि जो हमारा कम्युनल हारमोनी की जो मैसेज है, हमारा भाईचारा, जो असलियत हकीकती भाईचारा, जो हमारा सदियों से महाशिवरात्रि का फंक्शन जिसको हम शिवाइट कहते हैं, हम लोग वी बिलोंग फ्रॉम ए शिविज्म, वी आर ऑल शिवाइट्स, तो इसलिए उस एक वापस उसी एक प्रोसेस को फिर से एक बार स्टार्ट करना बहुत अच्छी बात है। मुबारकबाद है सभी बच्चों। वेलकम टू महाशिवरात्रि, जिसको हम कहेंगे शिवरात्रि से पहले हम इसको खुशामदीद कर रहे हैं। तो यहाँ हर कम्युनिटी के लोग थे, डीआईजी साहब भी थे और एमडी KPDCL जनाब एजाज साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। तो बड़ा रंगारंग प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि भाईचारे को रिवाइव करना है और जो हमारा ब्रदरहुड है सदियों से उसको कायम व दायम रखना है। हर किसी कम्युनिटी के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बोला कि जम्मू में होता था, इस बार यहाँ पे हो रहा है। नहीं, जम्मू में नहीं, आप गलत। सिंहपुरा पटन के हरिनारा गांव में पीने के पानी का कोई जरिया नहीं है। यह इलाका आज तक पीने के पानी से महरूम है। लोग अपने खर्चे से नस्ब करदा प्लास्टिक टैंकों में पीने के लिए पानी जमा करते हैं। लोग सरकार और महकमे जल शक्ति के खिलाफ बरहम है। पेश है मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। यह है तहसील सिंहपुरा के हरिनारा गांव की तस्वीर। यहाँ के लोगों को पीने के पानी को लेकर शदीद दिक्कतों का सामना है। यहाँ पर पानी की पाइपलाइन ही नहीं है और ये जो पानी की टंकियां नजर भी आ रही हैं, लोगों ने अपने खर्च से नस्ब की है। इन टंकियों में लोग पीने और दीगर इस्तेमाल के लिए पानी जमा रखते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि कभी बारिश का पानी इसमें जमा किया जाता है तो कभी कभार महकमा जल शक्ति की पानी की गाड़ी से फराहम करदा पानी यहाँ महफूज किया जाता है। लोगों का इल्जाम है कि साफ पानी मैसर न होने से हरिनारा में लोगों की जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है और यहाँ लोग मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। लोगों के मुताबिक सरकार और मुताल्लिका महकमे ने इस गांव को हर लिहाज से नजरअंदाज किया है और गांव की इस तस्वीर से सरकार के दावों पर सवाल उठता है। हमने सर बहुत सारी बार हमने डीसी साहब से, सर गवर्नर साहब से हम मिले और अपनी जो मतलब पानी की शिकायत है उसके सामने रखी है। उसने हमेशा भरोसा दिलाया कि आपकी जो पानी की प्रॉब्लम है इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आज 10 साल 15 साल 25 साल हो गए सर, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है सर। अस आबुक इंतजाम न स्कीम न गवर्नमेंट पुरसनी न सोन दादे बोजान ताकि अस मिले चन खतर आब। नट फेरान वातो कन वो प्रान टांकी थमस आब गोमुत खराब ये चवान टैंकन मज खराब गोमुत अम सह प्रॉब्लम सख्ती सड़कन हज आब खुसूसन आब सख्ती टंकी मोल इन आब इन मज खराब आब पे गम बेमार अभी न हटरे फेरान गरा हपर गरा यपर गाड़ वोल रेत 2 रेत त्रावान आब।
जब न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने महकमे के जी निसार अहमद से इस ताल्लुक से बात की तो उन्होंने कहा कि रीजनल परिहासपुरा वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल होने के बाद इसी प्रोजेक्ट से हरीनारा को भी पानी की सप्लाई की जाएगी। इंतजामिया को चाहिए कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत की फराहमी के अमल में तेजी लाई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। न्यूज 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। ICDS की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिंहपुरा में खवातीन के लिए सरकारी स्कीमों और घरेलू तशद्दुद से मुतल्लिक़ जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। ICDS सिंहपुरा की CDPO महमूदा अख्तर मेहमान ख़ुसूसी थी। महकमा तालीम और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। माहिरीन ने सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने से मुतल्लिक़ जानकारी दी। घरेलू तशद्दुद से बचने और तशद्दुद को ख़त्म करने से मुतल्लिक़ भी जानकारी दी गई। काफ़ी तादाद में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर्स ने शिरकत की। एक स्कीम है जो एडोलसेंट गर्ल्स पे परटेन करती है। डोमेस्टिक वायलेंस में एज प्रोजेक्ट ऑफिसर को रखा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर। उसके रिगार्डिंग भी हमने उनको अवेयर किया है कि जो रिसेंटली एक केस हुआ है गुजरात में एक लड़की का, वैसे नौबत नहीं आनी चाहिए कि उनको अवेयर करें ग्रास रूट लेवल पे कि क्या क्या उसका। बारामूला में फौज की जानिब से स्कूली तलबा के लिए क्विज और डिबेट मुकाबले मुनक्किद किए गए। सोशल मीडिया के मौजू पर मुनक्किद डिबेट में तलबा ने हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद में क्विज मुकाबले मुनक्किद किए गए। असातिज़ा और दीगर तलबा ने शुरका की हौसला अफजाई की। कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए गए और मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा में किताबें तकसीम की गईं। स्कूल्स में नहीं, अब गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसा गवर्नमेंट करे कि इससे बच्चों का बोलने का बोल चाल अच्छा बढ़ जाता है और वो आगे हर फील्ड में जाने की सोचते हैं। और जैसे कि इन सब कंपटीशन से उनकी नॉलेज इलाबरेट होती है। इसीलिए ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब गवर्नमेंट स्कूल में भी करें। अगर ऐसे प्रोग्राम होंगे तो लोग वहाँ पे बचेंगे इन नुकसान से, और जो फायदे हैं, जो अच्छा राह है, जो पाथ है, उसके ऊपर अगर सोशल मीडिया को लेके चलेंगे ये बहुत बड़ी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो इससे हमें बहुत सारा बेनिफिट मिला और हमें जाके आगे स्टेज पे जाके अपनी फीलिंग जो थी सोशल मीडिया और दूसरी चीजों के बारे में उसे एक्सप्रेस करने का। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत उम्मीद स्कीम से वाबस्ता खवातीन ने पुलवामा में अपनी नवियत की पहली नुमाइश का एहतमाम किया। डिग्री कॉलेज पुलवामा में मुनक्किदा नुमाइश का इफ्तिताह डीसी पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर ने किया। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जुड़ी खवातीन ने स्टॉल कायम किए थे। पुलवामा में तकरीबन 1500 के करीब खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम है। डीसी पुलवामा ने इन खवातीन की हौसला अफजाई की। उम्मीद का मकसद ही है कि टू जनरेट मनी, और ऊपर से आप देखिए कि हम लेडीज़ जो हम बाहर भी नहीं जा सकते थे अकेले, लेकिन इस वक्त हम इतने इंडिपेंडेंट हुए हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने सर्कल में, दायरे में रहकर हम कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद का जो मकसद है टू जनरेट मनी हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर में इसका बहुत बड़ा फील्ड है। हम यहाँ पे अगर इन चीज़ों में दवाई देंगे हमें दूसरी गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें यहाँ पे किस प्रोडक्शन, कौन सी प्रोडक्शन है, कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसी फील्ड में हमें। गुजर लीडर इशफाकुर रहमान पोसवाल ने जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और गुजर बकरवाल तबके से जुड़े मसाइल पर एलजी को एक मेमोरेंडम पेश किया। पोसवाल ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में कबायली उमूर पर वजारत तश्कील देने, ट्राइबल सब प्लान नाफिज करने, गुजर तबके के लिए सियासी रिजर्वेशन समेत दीगर उमूर पर एलजी से नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि मरकज ने कई इस्लाहाती ऐलानात किए हैं, ताहम उसको जमीनी सतह पर नाफिज को यकीनी बनाना चाहिए। चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने उनके साथ डिस्कस की, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जाए, ईज़ ऑफ लिविंग जो है जम्मू कश्मीर के अंदर उसका ख्याल रखा जाए। इस सिलसिले में मैंने उनसे गुजारिश की कि जम्मू और श्रीनगर सिटी के अंदर जल्द से जल्द उबेर और ओला को लाया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। मैंने दूसरा मसला उनके सामने उठाया जिसको मैं आज तक लड़ता आया हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर 2007 से लेकर आज तक, जो कबायली अमूर का मसला है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर वजारत भी बनी और 370 टूटने के बाद भी आज भी जम्मू कश्मीर में जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री का बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो महाराष्ट्र मॉडल है जो ट्राइबल मिनिस्ट्री का, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और
बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने दोदमर्ग त्राल का दौरा किया। ठाकुर ने गुजर तबके के वफूद के मसाइल सुने। पार्टी के जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना भी उनके हमरा मौजूद थे। अब्दुल रशीद गुजर को जिले का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। ठाकुर ने कहा कि अभी तक त्राल को तमाम सियासतदानों ने नजरअंदाज किया है। ठाकुर ने गुजर तबके के लोगों के साथ रक्स भी किया। है कि यहाँ पानी, बिजली, सड़क, पावर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और दूर-दराज इलाके में आज मैंने इनकी जब हालत देखी तो मुझे खुद भी इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पहुँचता है, लेकिन बदकिस्मती से पिछली हुकूमतों में आज तक यहाँ सड़क कभी ठीक की है और न कभी पानी की तरफ ध्यान दिया है। अब गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ की प्रोजेक्ट दी और हम यही उम्मीद करते हैं कि मार्च के आखिर तक या अप्रैल तक वो कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ की प्रॉब्लम से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर भी मौजूद थे। खवातीन शोबे की कारकुनों और दीगर सीनियर वर्कर्स ने भी मीटिंग में शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया। हाल ही में पीडीपी में शामिल हुए यूथ लीडर यावर बांडे ने शोपिया में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की। खासी तादाद में वर्करों ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर यावर ने कहा कि पीडीपी का विजन बहुत वसी है। कठुआ के हीरा नगर में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद की हिमायत में पार्टी के कुछ कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पार्टी हाईकमान से मुतालबा किया कि वो शाहनवाज चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जो पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार के तामीर और तरक्की के काम को देखकर कश्मीरी अवाम बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। इन बातों का इजहार बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने हंदवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाएं। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों चौगल, सोगाम और चंडीगाम का दौरा किया। उन्होंने महकमे की एक इमारत का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी से तामीर किए गए हाई डेंसिटी बागात का जायजा लिया। डायरेक्टर ने चौगल और चंडीगाम में नर्सरियों का जायजा लिया। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा, डीडीसी मेंबर सोगाम नासिर लोन भी मौजूद थे। वाइल्ड लाइफ डे की मुनासबत से दाशिगाम नेशनल पार्क में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने प्रोग्राम में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कश्मीर में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर रोशनी डाली। वाइल्ड लाइफ वार्डन राशिद नक्काश भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जा रहे इक़दामात से वाकिफ कराया। अखनूर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोड़ में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर एक लेक्चर का इनेकाद किया गया। साबिक IFS ओम प्रकाश शर्मा ने बायोडायवर्सिटी समेत दीगर अहम उमूर पर एक खसूसी लेक्चर दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर हंसराज और तुलबा के साथ साथ स्टाफ ने शिरकत की। माहौलियात के हवाले से जानकारी भी दी गई। डीसी गांदरबल शफकत इकबाल ने गुंड कंगन में अवामी दरबार मुनक्किद किया। मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने अपने मसाइल से डीसी को वाकिफ कराया। जोजला टनल प्रोजेक्ट में मकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करने की भी अपील की गई। डीसी ने यकीन दिलाया कि मकामी नौजवानों को ही तरजीह दी जाएगी। बारामूला में डीसी भूपेंद्र कुमार की जानिब से ब्लॉक दिवस के मौके पर शिकायत का अजाला इसके हवाले से कैंप मुनक्किद किया गया। लोगों की मुश्किलात के साथ साथ इलाके की फलाह बहबूद के बारे में तबादला ख्याल किया गया। कैंप में लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल डीसी के सामने रखे। डीसी कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा, कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद अशरफ के हमरा वर्नुलोला में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। डीडीसी मेंबर हाजी फारूक अहमद मीर भी मौजूद थे। लोगों ने अपने अपने इलाकों में दरपेश मसाइल को इंतजामिया के नोटिस में लाया। डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल को हल करने की अफसरान से तलकीन की। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 104 नए केस सामने आए हैं। आदातो शुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन से 87 और जम्मू डिवीजन से 17 अफराद कोविड से मुतासिर है। 49 अफराद को सेहतियाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। यूटी में फिलहाल 875 एक्टिव केसेस है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।